A very good morning to all of you. Okay, so in today's class, we are going to start a new chapter, chapter 9, Environment and Sustainable Development of your Indian Economic Development. Okay, so in this chapter, we are going to study the what is the meaning of the environment, functions of environment, environmental crisis, global warming, ozone depletion, overuse and misuse of environmental resources, opportunity cost of the negative environmental impact, supply demand reversal of the environmental resources, state of India's environment, natural resources of India, and threat to India's environment. Next topic that is we will discuss environmental degradation, pollution, air, water and noise, degradation of the natural resources, biodiversity loss, management of fresh water and the solid waste. Next topic is causes or the factors of the environmental degradation, measures to control the environmental degradations, and sustainable development. In the sustainable development, we are going to study the features of the sustainable development and steps and the strategies for the sustainable development. Okay, so let's start. Since the initiation of the 5-year plans, India's economic development has been quite satisfactory. There has been remarkable progress in agricultural and the industrial growth. ठीक है, since the initiation of the 5-year plans, जब से ये 5-year plans इनिशिएट हुआ है, इनिशिएट कब से हुआ है? फर्स्ट 5-year plan was came into force in 1951. So Indian economic development has been quite satisfactory. जो इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या है? क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है when we compare it to the before independence or before the 1950. So there has been remarkable progress in agricultural and industrial development. ठीक है, remarkable progress हुआ है एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में. There also has been development of the infrastructural facilities in all aspects of economic life. ठीक है, और क्या हुआ? There also have been development of the infrastructural facilities. जो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ है जो हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर में, हाउसिंग, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज दी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इनमें भी क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ है. बट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट वी हैव अचीव्ड सो फार हैज़ कम एट वेरी हैवी प्राइस. बट जो भी हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया अपनी कंट्री में, वो क्या है? वो अचीव तो हुआ, बट उसमें क्या था? बहुत ज़्यादा हाई प्राइस हम लोग को बेयर करना पड़ा एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल क्वालिटी, क्योंकि हम लोग को अपनी इन्वायरमेंट की क्वालिटी के साथ बहुत ज़्यादा बेयर करना पड़ा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स थे ऐसे जो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट थे. स्टिल हम वो सारे फैक्टर्स को यूज़ कर रहे थे प्रोडक्शन करने के लिए. तो ये क्या था? हमने बहुत कॉस्टली एक इन्वायरमेंट क्वालिटी को बेयर किया. सो एज वी स्टेप इनटू एन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन that promises higher economic growth, we have to bear in mind the adverse consequences of the past development path on our environment and concisely choose a path of sustainable development. Okay, as we step into the era of globalization, आपको पता है हम लोगों ने LPG पॉलिसी पढ़ी है 1991 की, जिसमें 1991 में क्या था? LPG पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड दी ग्लोबलाइजेशन. उसमें क्या था? दैट प्रोमिसेस हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें हमने क्या किया था? हाई इकोनॉमिक ग्रोथ किया था. वी हैव टू बेयर इन माइंड द एडवर्स कंसिक्वेंसेज ऑफ द पास्ट डेवलपमेंट पाथ ऑन आवर इन्वायरमेंट. ठीक है, हमने क्या किया था? हमें बहुत ज़्यादा जो पास्ट डेवलपमेंट पाथ था हमारी कंट्री का जो हमने किया था, उसमें बहुत एडवर्स सिचुएशंस को हमने बेयर किया था. इन्वायरमेंट जो बेसिकली क्या है? हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेडेट कर रही थी. एंड कंसाइजली चूज अ पाथ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. फिर अल्टीमेटली हमने पर्पसली हमने क्या किया था? जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पाथ था उसको हमने टेक किया था. सो चूज अ पाथ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें हमने किस पाथ को अडॉप्ट किया था? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट. वी हैव एक्सपीरियंस एडवर्स कंसिक्वेंसेज ऑफ द डेवलपमेंट पाथ वी टुक फॉलोइंग LPG पॉलिसीज ऑन आवर एनवायरनमेंट. ठीक है, हमने क्या किया? बहुत वी हैव एक्सपीरियंस्ड एडवर्स कंसिक्वेंसेज ऑफ डेवलपमेंट पाथ, कि हम लोगों ने बहुत एडवर्स कंसिक्वेंसेज को बेयर किया है टू
डेवलपमेंट पाथ हम लोग को डेवलपमेंट करना था, वी टुक फॉलोइंग एलपीजी पॉलिसी, जो भी एलपीजी पॉलिसीज डिफरेंट थी ऑन आर इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट देखिए हम लोग अगर देखते हैं कि अगर हमको एक चीज़ पानी है तो वी हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग। तो अगर हमें अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था तो हमने क्या किया, अपना इन्वायरमेंट के डेवलपमेंट के साथ, इन्वायरमेंट के साथ हमने बहुत ज़्यादा उसके साथ डिग्रेडेशन हुआ, उनकी जितनी भी कॉजेज़ थे, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, ये सब बहुत कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते गए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ओपन हो रही थी, जिसके जो वाटर्स होते थे वो डायरेक्टली रिवर में जा रहे हैं, पॉन्ड में जा रहे हैं, वो एमिशंस निकल रहे हैं, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट हम किस पे कर रहे थे, एयर, वाटर और नॉइज़ पॉल्यूशन पे। Thus, we need to understand the significance and contribution environment to economic development. ठीक है, अब हमें क्या समझना है, we have to understand the what is the significance, क्या importance है और environment का क्या contribution है in the economic development. ठीक है, अब आपको पता है जब तक environment आपका contribute नहीं करेगी तो there will be no economic development, कोई भी economic development नहीं होगा. So in this chapter we will learn about the functions, role of environment and state of India's environment. We will also discuss steps and the strategies to achieve sustainable development. Okay, in this chapter we are going to study the functions and role of environment कि कोई भी environment का क्या function होता है, उसका क्या role है और India's के environment में उसका कैसा situation है. So we will also discuss steps and strategies to achieve sustainable development. हम लोग क्या पढ़ेंगे, step भी पढ़ेंगे और क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, सो वी विल स्टडी ऑल अबाउट दिस थिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी व्हाट इज एनवायरनमेंट. ओके, हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट क्या होता है. एज यू ऑलरेडी नो व्हाट इज एनवायरनमेंट, क्योंकि आप लोगों ने अपने सोशल साइंस में पढ़ चुका है कि एनवायरनमेंट क्या होता है, किस टाइप के पॉल्यूशन होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, कैसे हम डिफरेंट मेजर्स को टेकन करके जो भी डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं उनको अडॉप्ट करके हम इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट. सो हम लोगों ने ये सब सोशल साइंस में पढ़ लिया है, बट वंस मोर इन योर क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी विल स्टडी. सो इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस and the quality of all resources. It includes all the biotic and abiotic factors that influence each other. A study of environment refers to the study of interrelationship between these biotic and abiotic components of the environment. Okay, so environment is this defined as the total planetary inheritance, means total global heritage है. कोई भी environment हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये इस कंट्री का environment है या इस कंट्री का है. हम ग्लोबली इनहेरिटेंस पढ़ते हैं कि हम लोग ग्लोबली लेवल पे पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट इज रिलेटेड टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द कंट्री. ओके, सो ये क्या है कि टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस है, मतलब टोटल ग्लोबल हेरिटेज है, एंड टोटलिटी ऑफ द ऑल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, उसका ये टोटलिटी है. सो इट इंक्लूड्स ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स. इसमें हम क्या करते हैं, सारे जो बायोटिक फैक्टर्स हैं और जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं. डैट इन्फ्लुएंस ईच अदर, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप. जो अगर हम एनवायरनमेंट की स्टडी कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है कि हम लोग स्टडी किसकी कर रहे हैं, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट. कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके बीच का इंटर रिलेशनशिप ऑफ द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट में कैसे ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं, जो सारे फैक्टर्स हैं बायोटिक एंड एबायोटिक, उनका कैसा इंटर रिलेशनशिप होता है. सो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बायोटिक और लिविंग एलिमेंट्स लाइक बर्ड्स, एलिमेंट्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट. हमें पता है बायोटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी लिविंग एलिमेंट्स हैं, दीज ऑल आर दी बायोटिक. और एबायोटिक में क्या होते हैं, सारे नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं. ओके, सो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बायोटिक और लिविंग एलिमेंट्स लाइक बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, एंड एबायोटिक और नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक एयर, वाटर, सॉयल, रॉक्स, सनलाइट एक्सेट्रा. ठीक है,
तो इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, हम लोग किसके बीच में इंटर रिलेशनशिप पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट में इंटर रिलेशन हम लोग किसका पढ़ते हैं, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक and abiotic components. Okay, components in biotic and abiotic. So abiotic में आपका क्या आ गया, एयर, वाटर, सॉइल, और इसमें क्या आ गया आपका, एनिमल्स, birds, etc. Sorry, birds. Okay, so plants, etc. Okay, so क्या आ गया, environment meaning होता है, it is the interrelationship between the biotic एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. तो हम लोग बायोटिक में क्या लेते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा, प्लांट्स एक्सेट्रा. इन एबायोटिक कंपोनेंट्स वी विल टेक एयर, वाटर एंड सॉइल. सो एनवायरमेंट इंक्लूड्स द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. ओके, yes, so in other words, environment refers to all those activities, resources or elements of the surrounding that influences human life. ठीक है, environment में हम क्या लेते हैं, वो सारी conditions लेते हैं, resources लेते हैं, elements लेते हैं, जो भी हमारे सराउंडिंग है. आप अपने सराउंडिंग में देखो, आपको जितने भी रिसोर्सेज दिख रहे हैं, जो भी कंडीशन दिख रही है, और जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, दैट इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन लाइफ. जो क्या करती है, ह्यूमन लाइफ को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो ये सारे जो हैं बायोटिक भी ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करते हैं, और एबायोटिक भी क्या है, ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली. सो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, ये प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में. तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, environment includes water, air, land and interrelationship which exist between water, air, land and human beings and other creatures, plants, microorganism and property. Okay, तो environment में क्या क्या आता है, water आएगा, air आएगा, land आएगा, और relationship किसके बीच में आएगा, between the air, water, land, human beings and the other creatures, plants, microorganism and property. So in this we can say that it is the interrelationship between the different components like biotic components and the abiotic components. So in the biotic component we will take animal, birds, plants, etc. And in the abiotic components we will take air, water, soil, etc. Okay, so in these simple words, it is the interrelationship between the biotic and abiotic component that influences the human life. जो human life को क्या करते हैं, influence करते हैं. Okay, now the next topic is functions of environment. Okay, so we will discuss it. Functions of environment. As we already studied what is the meaning of environment, the next is what is the functions of environment. So first one is environment supplies resources. First is we will write as in short is like environment. In above we will write the T. So environment supplies resources. It is the first function of environment. Okay, so environment supplies resources which are strategic for the production.
हमें पता है कि इन्वायरमेंट से ही हमें सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, वो चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हों, वो चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो। ठीक है, तो हमें पता है एकदम प्रॉपरली कि जो इन्वायरमेंट है वहीं से रिसोर्सेज क्या होते हैं, सप्लाई होते हैं। सो इन्वायरमेंट सप्लाइज रिसोर्सेज विच आर स्ट्रैटेजिक फॉर द प्रोडक्शन, जो क्या है प्रोडक्शन के लिए एकदम स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि हम लोग डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं फॉर दी प्रोड्यूसिंग दी कमोडिटी। सो रिसोर्सेज इंक्लूड्स बोथ रिन्यूएबल एंड दी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज में क्या आते हैं, रिन्यूएबल भी रिसोर्सेज आते हैं एंड दी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल resources. Okay, so I think you must know and you already know what is the meaning of renewable resources and the non-renewable resources. So renewable resources are those which can be used without the possibility of them getting depleted or the exhausted. That is, which do not get exhausted, that is continuous supply of the resources remain available. Renewable resources वो सारे resources होते हैं जिनका यूज़ हम क्या कर सकते हैं विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ देम गेटिंग डिप्लीटेड, उनका बिना डिप्लीशन के वो क्या है कभी भी एग्जॉस्ट और डिप्लीटेड नहीं होते, उनका हम कंटिन्यूसली क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ विच डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड, जो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं हो सकते हैं। दैट इज़ अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द रिसोर्सेज रिमेन्स अवेलेबल। ठीक है, उन रिसोर्सेज का हम क्या है कंटिन्यूअस सप्लाई कर सकते हैं, रिसोर्सेज रिमेन अवेलेबल, वो कभी भी क्या होंगे, एंड उनका नहीं होगा, वो हमेशा ही अवेलेबल रहेंगे। लाइक ट्रीज, क्या ट्रीज कभी एंड हो सकती, ट्रीज कम हो सकती है बट ट्रीज एंड नहीं हो सकती। फिशेस का भी यही है कि मे बी फिशेस का जो मोर्टिलिटी रेट है, मतलब उनका डेथ रेट है, वो इंक्रीज हो जाए बट वो एंड नहीं हो सकती। प्लांट्स हैं, दीज ऑल आर दी रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट एग्जॉस्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड यूज़। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जो अगर हम उनका कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे वो क्या होंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, वो उनका एंड हो जाएगा, वो डिप्लीटेड हो जाएंगे। ठीक है, यूज़ वन बाई वन अगर हम उसको कंटिन्यूसली उसको यूज़ करते हैं वो क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स, जो भी सारे फ्यूल्स होते हैं अगर हम उनको कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, क्या अगर कोई भी डिफरेंट कोई भी वुड ले लेते हैं हम, और क्या वो वुड अगर वो एशेज़ में चेंज हो जा रहा है तो क्या हम उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते ना। तो ये सारे क्या होते हैं, इसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, सो दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज विच इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स एंड आर यूज्ड एज इनपुट्स फॉर द प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारे वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो इन्वायरमेंट में प्रोवाइड होते हैं एंड आर यूज्ड एज इनपुट फॉर दी प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इनको हम लोग क्या करते हैं, इनपुट्स की तरह यूज़ करते हैं। हमें पता है कि कोई भी प्रोसेस है वो कैसे होता है, इनपुट। ठीक है, इनपुट हम लोग क्या लेते हैं, रॉ मटेरियल ले लिए या कुछ भी रॉ में थिंग्स है, एंड देन इट विल चेंज इन द प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस होगा एंड देन अल्टीमेटली आउटपुट। ओके, तो जितने भी रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज जितने भी हमें अवेलेबल हैं, वो चाहे कोई भी रिसोर्सेज हो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, हम उन रिसोर्सेज को एज अ इनपुट यूज़ करते हैं। ठीक है, थ्रू प्रोसेस हम अल्टीमेटली कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। कि हम लोग की आपको पता है इकोनॉमी में कभी भी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कम नहीं होता, मतलब कम हो सकता है, कभी भी एंड नहीं हो सकता। अभी आप देख रहे हो कोविड में भी क्या प्रोडक्शन एकदम डिक्रीज हो गया है, बट वो एंड नहीं हो सकता क्योंकि लोगों की डिमांड और सप्लाई भी एंड नहीं हो सकती। हम लोग एज अ कंज्यूमर, आपको लग रहा है कि 4 मंथ और 5 मंथ होने वाला है और हम लोग ने क्या डिमांड कोई भी कमोडिटी का नहीं कर रहे हैं। हम लोग डिमांड हमारी कभी भी कम नहीं हो सकती है और कंजप्शन हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स, कंजप्शन, डिमांड एंड सप्लाई, वी विल डिस्कस इन दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो थ्रू द इनपुट के थ्रू हम इनपुट को क्या करेंगे, प्रोसेस में चेंज करके अल्टीमेटली हमें आउटपुट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं विच इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स एंड आर यूज्ड एज द इनपुट फॉर द प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारे क्या हैं,
एज अ इनपुट हम इनको यूज़ करते हैं। फिर क्यों? क्योंकि हम उससे कोई डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज environment assimilates waste. Next is environment assimilates waste, sorry. Assimilates. Okay, yes. So assimilates means absorb something. So we need to undertake production process to produce a commodity. ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि हमें क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन प्रोसेस करना पड़ता है टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी। हमें क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज से इनपुट तो मिल गया, ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज मिला, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मिला, जिससे हम क्या करते हैं, कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज से हमें क्या मिला, इनपुट मिल गया, जिससे हम कमोडिटी को प्रोड्यूस करेंगे। अब प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू, दिस प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू हम अल्टीमेटली किसी आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता ही है कि ये एक चेन है जिसके थ्रू हम कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस अ लॉट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड। ये हमें पता है कि हम कोई भी आप फॉर एग्जांपल आप कुछ पेंटिंग करने जाते हो या आप कुछ पेंसिल को शार्प करते हो तो उससे कुछ वेस्ट निकलता है। आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो उससे कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट होता है। तो वैसे ही अगर हम कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ वेस्ट तो जनरेट होगा। अब कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में है या किसी प्राइमरी सेक्टर में है तो वो क्या होता है, कुछ भी वो प्रोड्यूस करते हैं तो कुछ ना कुछ एक वेस्ट निकलता है। ओके, सो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस में अ लॉट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड। बहुत सारा लॉट ऑफ वेस्ट क्या होता है, जनरेट होता है। एक्टिविटीज ऑफ कंजप्शन ऑल्सो जनरेट वेस्ट। ठीक है, अगर हम कोई कमोडिटी को अगर हम कंजप्शन भी करते हैं, कुछ हम कंज्यूम भी कर रहे हैं, सो इट विल ऑल्सो जनरेट दी वेस्ट। वो भी क्या करता है, वेस्ट जनरेट करता है। सो जनरेशन ऑफ द वेस्ट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज। ठीक है, जो भी वेस्ट होता है वो अगर जनरेट हो रहा है वेस्ट, वो अल्टीमेटली किस में चेंज हो जाता है, गार्बेज में, जो आपका नॉर्मली कूड़ा कचरा होता है उसमें चेंज हो जाता है। इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब दिस वेस्ट। इन्वायरमेंट क्या करता है, इन सारे वेस्ट को क्या करता है, इन्वायरमेंट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है दीज वेस्ट। जो भी ये वेस्ट मटेरियल है उनको इन्वायरमेंट क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब दिस वेस्ट क्रिएटेड बाय द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज करने पे अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, तो कोई भी इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज से जो भी वेस्ट जनरेट हुआ तो इन्वायरमेंट क्या करता है, उनको एब्सॉर्ब कर लेता है। उसी में क्या आता है आपका रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, कि जैसे आपको पता है प्लास्टिक्स, वो क्या है, वो तो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। वो कभी भी आप किसी भी लैंड के अंदर आप उसको अंदर गाड़ दो और 500 साल बाद भी निकालोगे तो वो प्लास्टिक क्या होगी, वैसी ही निकलती है। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि देयर शुड बी अ बैन ऑफ प्लास्टिक का क्या है, बैन कर दिया जाता है, बट वो ज़्यादा दिन तक इम्प्लीमेंट नहीं होता है, बस 2-4 दिन होता है, फिर उसके बाद वो लोग उसको यूज़ करने लगते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हमने पढ़ा, पहले हमने पढ़ा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की क्या मीनिंग होती है, उसमें हमने पढ़ा कि एक इंटर रिलेशन होता है किसके बीच में, जितने भी बायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं और जितने भी एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट वी स्टार्टेड द फंक्शंस ऑफ द इन्वायरमेंट, कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द इन्वायरमेंट। फर्स्ट वी हैव स्टडीड इन्वायरमेंट सप्लाइज रिसोर्सेज। इन्वायरमेंट क्या है, वो रिसोर्सेज को सप्लाई करता है। वो रिसोर्सेज कैसे होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव स्टडीड दी, जिसमें जो भी डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या करते हैं, हमको इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस को आगे स्टैंड कर सके और कंटिन्यू कर सके। नेक्स्ट हमने पढ़ा इन्वायरमेंट एसिमुलेट्स वेस्ट।
इन्वायरमेंट क्या करता है, डिफरेंट जितने भी वेस्ट है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। हमें पता है कि हम डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, इनपुट्स को लेते हैं, इनपुट्स को डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू आउटपुट में उसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, जब इसको हम लोग आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, when anything is converted into the output, so there are so many waste is generated, बहुत सारे वेस्ट होते हैं वो जो जनरेट होते हैं। ओके, कोई भी अगर हम प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं, कोई भी अगर हम कंजप्शन प्रोसेस करते हैं, तो इन्वायरमेंट, सोचिए इन्वायरमेंट कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम कुछ भी जनरेट कर रहे हैं वेस्ट, वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जितने भी डिफरेंट वेस्ट मटेरियल हैं, इन्वायरमेंट क्या करता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। इट्स सो बिगेस्ट थिंग ना, कि वो क्या करता है, पूरे को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, सो नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ। इन्वायरमेंट क्या है, वो सस्टेन्स लाइफ। ओके, इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ। ओके, यस, so environment includes the basic elements required for the survival, for example air, water, soil, sun, etc. ठीक है, environment में वो सारी चीज़ इंक्लूड होते हैं, वो सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं जो किसी के भी नॉर्मल ह्यूमन लाइफ के सर्वाइवल के लिए, या आपका एनिमल है, प्लांट हैं, उनको क्या है, उनके सर्वाइवल के लिए, सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सब उसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, बिना नेचुरल थिंग्स के, बिना इन्वायरमेंट में हम जितने भी बेसिक एलिमेंट्स हैं उनकी पूरी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर दी सर्वाइवल, फॉर दी और दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक एयर, वाटर, सॉइल एंड सन। सो प्रेजेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स करस्पॉन्ड टू सस्टेनेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ। ठीक है, अगर ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं, वो क्या करेगा, इट इज़ दी करस्पॉन्डिंग टू दी सस्टेनेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ। वो क्या करता है, ह्यूमन लाइफ की सस्टेनेंस को इंक्रीज करता है, मतलब लोगों की लिविंग को क्या करता है, वो करस्पॉन्डिंग होता है ये सारे प्रेजेंट्स। अगर ये सारे डिफरेंट जो भी एलिमेंट्स हैं वो अगर प्रेजेंट होते हैं, तो ह्यूमन लाइफ की क्या है, वो ईजिली वो क्या कर सकते हैं, लिव कर सकते हैं लाइफ। सो इन्वायरमेंट हैज़ टू कैरिंग कैपेसिटी। इन्वायरमेंट में क्या होता है कि कैरिंग कैपेसिटी होती है टू सस्टेन दी लाइफ, कि वो कितने डिफरेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कैरी करके किसी की भी ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करता है। मतलब जो भी ह्यूमन लाइफ है उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट के थ्रू सस्टेन होता है। ओके, यस, तो इन्वायरमेंट क्या करता है, जो भी जेनेटिक और बायोडाइवर्सिटी थिंग्स हैं उनके लिए इन्वायरमेंट क्या है, लाइफ को सस्टेन करता है, लाइफ को क्रिएट करता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में ही हमको क्या है, जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। और अगर उन सारे भी एलिमेंट्स का एब्सेंस हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएंगे, तो कोई भी ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। कोई भी ह्यूमन लाइफ को अगर आपको लग रहा है कि एक दिन के लिए आपके यहाँ, एक दिन के लिए क्या, एक घंटे में आपको एयर ना मिले, ठीक है, एक दिन आपके यहाँ सन ना आए पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, तो क्या लाइफ सस्टेन हो पाएगी? इसलिए इन्वायरमेंट क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ। ओके, नेक्स्ट वन इज, yes, next one is environment provides aesthetic services. environment क्या करती है, aesthetic services provide करता है। मतलब environment includes all those elements. Next one is environment provides aesthetic services. This one is fourth. First, second, third, fourth. Okay, environment provide aesthetic services. So environment includes all those elements which improve quality of human life. Environment में क्या होता है, वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट में ही सब कुछ है। हम अगर देखते हैं कि अगर डिफरेंट इन्वायरमेंट में क्या है, वो सारे एलिमेंट्स हैं जो ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इन्हांस और इम्प्रूव करते हैं। अगर हमें प्रॉपरली इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, हम कहते हैं ना कि अगर हम कहीं पढ़ने बैठते हैं कि अरे इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है यहाँ का, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्यों?
कि हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, अगर वो प्रॉपर सिचुएशन कंडीशन हमें नहीं मिलती है, सो वी आर नॉट एबल टू डू थिंग्स, हम कोई भी काम कर नहीं सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लैंड, सीज, ओशंस, रेनफॉल, एयर, एटमॉस्फेयर, डेजर्ट्स, माउंटेन्स एक्सेट्रा. अगर आपको ये आप कहीं भी कोई भी अगर वैकेशन होता है तो आप सोचते हो ना कि ऐसे हिली एरियाज़ में जाएं जहाँ पे, और रिवर्स में जाएं, माउंटेन्स को देखने जाएं, क्योंकि ये सब क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट दी ब्यूटी, एक इन्वायरमेंट की ब्यूटी है. ठीक है, हम क्या करते हैं, वहाँ पे जाना पसंद करते हैं. सो इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल दोज एलिमेंट विच इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. वो क्या करती है, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इंक्रीज करती है. सो ऑल दीज एलिमेंट्स मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल एंड रिफ्रेशिंग. ये जो सारा एलिमेंट्स है वो क्या करता है, हमारे सराउंडिंग को ब्यूटीफुल बनाता है और रिफ्रेशिंग बनाता है. मतलब हम लोग कहते हैं ना कि आज रिफ्रेश हो गया है प्रॉपर एकदम एयर लेके. तो ये सब क्या है कि ये सारे एलिमेंट्स हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं और रिफ्रेशिंग करते हैं. ह्यूमन बींग्स वुड चेरिश एंड एंजॉय दी सराउंडिंग. ठीक है, ह्यूमन बींग है वो बहुत ज़्यादा इसमें नरिश और केयर फील करता है, एंजॉय दी सराउंडिंग, इन सारे सराउंडिंग्स को एंजॉय करता है, विच विल हेल्प इन इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ. वो क्या हेल्प करता है कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, उससे वो इंक्रीज होती है. ओके, सो in today's class what we have discussed, we have started a new chapter, environment and sustainable development. We have discussed what is the meaning of environment and what are the functions of environment. So we have discussed the environment supplies resources, environment assimilates waste, environment sustains life, and the environment provides aesthetic services. Okay, so it's all about your today's class. We will continue further in the next class. Thank you.